Hello guys, once again I Somesh Dhingra welcome you on behalf of Commerce 247. So before this, as we already discussed, how to distribute the reserves and P&L. In this video, we will distribute the reserves and P&L in the sacrificing ratio also. Sacrificing and gaining ratio. So as you already know, at various intervals we distribute the reserves and surplus in old ratio. Basically, there are two circumstances. The first one is when the partners do not want to disturb the value of reserves and P&L. When the partners do not want to disturb the value of reserves and surplus, at this time, the reserve and surplus are to be distributed in sacrificing and gaining ratio. तो ध्यान रखना, दो केसेस होते हैं. पार्टनर्स बुक वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं या चेंज नहीं करना चाहते हैं. अगर नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? गेनिंग और सैक्रिफाइस. अगर बुक वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ओल्ड रेशियो. दिस वन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, old ratio. Now we will talk about when we will distribute it in sacrificing and gaining ratio. So let us consider the first case when partners do not want to change the book value. In this, balance sheet will remain the same, the book value will remain the same, only the portion of profit and loss is to be distributed through gaining and sacrifice. और जनरल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट to sacrificing partners capital account. So gaining to sacrificing इसकी journal entry create होगी. Let us solve one or two questions to understand the concept. So the first question as displayed on your screen is A and B are partners sharing profit and losses in 3:2. A and B are partners sharing profit and losses in 3:2. On 31st March 2016, their balance sheet showed a journal reserve of 54,000. Journal reserve is 54,000. On the date they decided to admit C, the new profit sharing ratio is 4:3:2. Now ABC 4:3:2. Record the necessary journal entry. First one is when they want to transfer the journal reserve. They want to transfer यानी कि बुक वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं. They want to transfer. And the second one is when they do not want to transfer. They do not want to transfer. Basically what happens, student mistake कहाँ पे करता है? जब वो do not want to transfer लिखता है तो स्टूडेंट क्या कर देता है? इसकी एंट्री नहीं करता, नो एंट्री लिख. लेकिन जब भी वो जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहता तब भी एंट्री होगी, लेकिन होगी किसमें? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो पहला केस करते हैं व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व. तो जब जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंगल एक ही जर्नल एंट्री होती है और वो क्या होती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट. ये हमारा क्या होता है? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है. बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. अब जर्नल रिजर्व कितना था? 54,000 था. इस 54,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है. ओल्ड रेशियो क्या है मेरे पास? 3:2. 54,000 into 3/5 and 54,000 into 2/5. 3/5 और 2/5 अभी ऑलरेडी डिस्कस कैसे आया है? 3 टोटल में 5 इन दोनों का. ओल्ड रेशियो में इसलिए बटा है क्योंकि वो पार्टनर्स रिजर्व को क्या करना चाहते हैं? ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बुक वैल्यू को अल्टर करना चाहते हैं. तो कैंसिल आउट करेंगे. दिस बिकम्स 5400 और 10,800 into 3, that is 30,000 और 32,400. This becomes 10,800, 21,600. तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? 32,400 and 21,600. This is the first case. Now the second one, when they do not want to transfer. ध्यान रखना, I am indicating again and again कि अगर वो ट्रांसफर नहीं भी करना चाहते
तो भी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी, और होगी कैसे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, क्यों करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चेक करते हैं, here old is a, b and new is c, old is 3/5 and 2/5, new की बात कर लेते हैं, new 4/43729, 4/9, 3/9 and 2/9. Now solve it out, 45 27 minus 20, this is 7/45, this is again 45, 9 to the 18 minus 15, this is 18 minus 15, 3/45. Now this is minus 2/9. तो गेन करने वाला कौन है, जो माइनस में आता है वो हमेशा गेन करता है, माइनस में कौन आया, सी आया, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये क्या कर दिया हमने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बीइंग द जनरल रिजर्व एडजस्टेड। नाउ अमाउंट क्या आएगी, देखते हैं अमाउंट कितनी आएगी। जनरल रिजर्व की अमाउंट थी 54,000, ए के में आया 7/45, बी के में आया 54,000 into 3/45, and at the last C के में 54,000 into 2/9, 9 6 12,000, C तो आ गया मेरे पास 12,000। now 9 5 9 6 6,005, 1,200, 3,600, and again 1,280. So A is 8,400 and B is 3,600. So this is the journal entry in case of when the partners do not want to transfer the journal. Remember this, there is only a single journal entry when partners do not want to transfer the reserve. अगर यहाँ पे P&L भी होता, 3-4 चीजें होती, एडवर्टीजमेंट भी होता, तो सबका पहले ही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और एक ही जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं, क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। नोट डाउन द क्वेश्चन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन so that you can, whenever you want, you can revise it. Let us move to the second question. The second question as displayed on your screen is XYZ are profit sharing losses in 5:3. XYZ तीन पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3. They decided to share future profit and losses in 2:3:5. Now the new ratio is 2:3:5. They decided to record the effect of following without affecting their book value. Now without affecting their book value, यानी कि बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना है। अब बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना तो इसका मतलब क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बटनी, चीजें क्या बटनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बटनी। प्रॉफिट एंड लॉसेस 24,000, प्रॉफिट एंड लॉसेस 24,000 एंड एडवर्टाइजमेंट expenses 12,000। नाउ पहले ही उसने कह दिया कि बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना है। अगर बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना है यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बढ़ना। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बढ़ना है तो हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला यूज करते हैं और फार्मूला क्या है हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। Here we are having three partner X, Y and Z. तीनों का शेयर 5, 3 और 2, 5/10, 3/10 and 2/10. New 2, 3, 5. This is 2/10, 3/10 and 5/10. So it becomes
10 3. This is 0 and this is again minus 3 upon 10. Now sacrificing is clear. अब P&L बांटना है और एडवर्टाइजमेंट बांटना है. P&L I discussed earlier also, if nothing is given, this is credit balance. क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट यानी कि क्या होती है? लायबिलिटी. और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है? एसेट है. नाउ वन इज लायबिलिटी एंड अदर इज एसेट्स. पहले इनको एडजस्ट करते हैं. लायबिलिटीज में से एसेट्स की वैल्यू क्या करते हैं? माइनस. अगर दोनों एसेट होते तो ऐड कर देते, दोनों लायबिलिटी होते तो भी ऐड कर देते. अदरवाइज हम क्या करेंगे? लायबिलिटी से एसेट्स की वैल्यू माइनस करेंगे. तो लायबिलिटी माइनस एसेट्स करेंगे. ये हमारे पास लायबिलिटी थी 24,000 के, एसेट्स थे 12,000 के, रिमेनिंग आ गया 12,000. इस 12,000 को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांट. इस 12,000 को क्या करेंगे हम? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए हमें पता होना चाहिए गेन कौन है. जो माइनस में आ रहा था जेड वो गेन कर रहा था, और जो प्लस में आ रहा था वो क्या कर रहा था? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे. जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, being P&L and advertisement suspense adjusted. किस रेशियो में बांटेंगे? उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर में बांटेंगे. 12,000 into 3/10, दोनों का ही 3/10 था, that is 3,600. So here it is 3,600 and 3,600. So these are the question when we have to solve it out in gaining and sacrificing ratio. Remember this, there are two circumstances. One is when the partner decided to change the book value, another is when partner do not decide to change the book value. Remember, जब भी book value में change होगा तो हम क्या करेंगे? old ratio में बांटेंगे. book value में change नहीं करना होगा तो हम gaining और sacrificing में बांटेंगे. Thank you. Keep on watching and keep on learning and sharing. Thank you.